عشق ہے رمضان عشق ہے رمضان عشق ہے اس قوم کے رونے کو 19 رمضان المبارک کوفہ کی سرزمین، نماز فجر کا وقت اور مسجد میں انصاف، علم و حکمت، شجاعت، سادگی کا پیکر، دشمنان دین کے لیے ہیبت کی علامت مولا علی علیہ السلام کا خداوند بزرگ و برتر کے حضور جھکا سر، خشوع و خضوع کا یہ عالم کہ اپنی سانس کی آواز بھی نہ سنائی دے۔ ایسے میں ملعون عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر آلو تلوار نے مولا کائنات پر وار کر ڈالا۔ تلوار کا مولا کے جسم کو چھونا تھا کہ یکلق آسمانوں سے ملائک کا واویلا شروع ہو گیا، سیاہ آندھیاں چلنے لگ گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لب سے نوحہ جاری ہو گیا۔ اٹھ اٹھ کے خاک محشر کا سا سما تھا، زمین و آسمان لرز اٹھے۔ وار اتنا کاری تھا کہ ابو تراب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ سہ پاتا، مگر حیدر تو پھر حیدر ہے۔ اڑاتی ہے جو بن میں ابن ملجم کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر آپ کو رحم آ گیا۔ حسن اور حسین سے عدل و انصاف کے پیکر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارا قیدی ہے، اس کے ساتھ سختی نہ کرنا، جو خود کھانا اسے کھلانا۔ اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھے اختیار ہے کہ میں چاہوں سزا دوں یا معاف کر دوں، اور اگر میں اس دنیا میں نہ رہا تو تم اس سے انتقام لینا چاہو تو اسے ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی تھی۔ حق مانگ رہی ہے۔ کبھی عشق و معرفت کے شعور تک نہ پہنچا، رہا ظلمتوں میں حیران، کبھی نور تک نہ پہنچا۔ یہی سلسلہ طریقت، یہی سلسلہ حقیقت، جو علی تلک نہ پہنچا وہ حضور تک نہ پہنچا۔ تعظیم کو شیر خدا کے خون میں ڈوبا ہے مصلی، شیر خدا کے خون میں ڈوبا ہے مصلی، صدیاں اب بھی گیا جب بھی روتا ہے مصلی، شیر خدا کے خون میں ڈوبا ہے مصلی، نوحالی کے غم میں کرنے لگی اذان، نوحالی کے غم میں کرنے لگی اذان، ماتم علی کی یاد میں کرتا ہے مصلی، شیر خدا کے خون میں ڈوبا ہے مصلی، زینب تڑپ کے رہ گئی بابا کی یاد میں، زینب تڑپ کے رہ گئی بابا کی یاد میں، بابا کے بعد جا کبھی دیکھا ہے مصلی، شیر خدا کے خون میں ڈوبا ہے مصلی، کوفے کا سجدہ ایک تو ایک کربلا کا تھا، کوفے کا
سجدہ ایک تو ایک کربلا کا تھا، جن کے سبب سے آج بھی زندہ ہے مصلی، شیر خدا کے خون میں ڈوبا ہے مصلی، مجلس علی کی ہوتی ہے سلمان اعظمی، مجلس علی کی ہوتی ہے سلمان اعظمی، فرش عزا کی شان میں بچھتا ہے مصلی، شیر خدا کے خون میں ڈوبا ہے مصلی، شیر خدا کے خون میں ڈوبا ہے مصلی، صدیاں گزری ہیں آج بھی روتا ہے مصلی، شیر خدا کے خون میں ڈوبا ہے مصلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 رمضان 1438 ہجری، یوم ضربت، انسانی تاریخ کا وہ سیاہ دن جب ابن ملجم نے مولا علی پر وار کیا۔ السلام علیکم بھیا۔ مولا علی کا قول کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ آواز آئی نا آپ لوگوں کو؟ سب کو آ رہی؟ کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کی تیاری نہیں کرتا، اور مولا کائنات کی تیاری دیکھیے کہ موت سر پر کھڑی اور آپ کا سر خدا کے حضور سجدے میں تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یہ یاد نہیں رکھنا پڑتا، وہ ویسے ہی ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ تو سوچئے اپنے قول و فعل سے دوسروں کو اچھا بنانے والا خود کتنا اچھا ہوگا۔ کوئی بھول سکتا ہے ان کو؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ابھی میں اس نوجوان نے پڑھنا شروع کیا تھا تو میں رحمانی بھائی سے کہی تھی، میں نے کہا رحمانی بھائی کیا شخص تھا وہ، میں تو اس کو انسان بھی نہیں کہہ سکتی، I'm sorry اگر میری طرف سے کوئی گستاخی ہو جائے، لیکن جب 19 آتی ہے اگر دل سے واقعی میں عشق ہے نا تو وہ فیل ہوتی ہے تکلیف یہاں پر، کہ وہ کیسا شخص تھا۔ تو چھپا بیٹھا رہا مسجد میں، انتظار کرتا رہا کہ آپ کے پیٹھ پر جا کر وار کرے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے، اور آپ نے اپنا سجدہ نہیں چھوڑا۔ معلوم اس طرح تھا کہ مسجد کے اندر وہ الٹا سو رہا تھا، مولائے کائنات آتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ جا، سیدھا ہو جا، الٹا لیٹنا جہنم کی نشانی ہے۔ 19 رمضان کو مولائے کائنات جب اپنے گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں نا تو بدخیں آ کے راستہ روک لیتی ہیں اور اپنی آواز میں بدخیں بتا رہی ہیں کہ مولا آگے مت جائیے، آپ چلے گئے تو آج زینب یتیم ہو جائے گی، کلثوم یتیم ہو جائے گی، آج شہنشاہ ولایت آپ چلے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے آپ مت جائیے۔ آپ نے ان کو ہٹایا اور پھر تاکید کی امام حسن کو، امام حسین کو کہ ان کا خیال رکھنا، اور پھر آپ وہاں جا رہے ہیں۔ وہ تمام باتیں ابھی انشاءاللہ باتیں ہوں گی تو بڑا مشکل ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا وہ سوچ کر۔ تو رحمانی بھائی کا جواب تھا کہ آپ ہی یہ گھرانہ کتنی قربانیوں سے بھرا ہے، شروع سے
آج کا دن ہم ٹرانسمیشن میں گاہے بگاہے اپنے علماء کرام کے ساتھ آپ سب کے ساتھ ضرور ذکر کریں گے، کیونکہ آج 19 رمضان اور تاریخ جو ہے آج انگریزی وہ ہے 15 جون جمعرات کا دن 2017۔ مولا علی کی شجاعت ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دشمنوں کی صفوں کو چیر دیا کرتے تھے، اور ثقافت کا یہ عالم کہ دشمن جب سائل بن جائے تو اپنی تلوار تک اسے دے دیتے تھے۔ کس کس واقعوں کو، ان کے کس کس قول کو یاد کیجئے، ان کے ایک ایک قول کو لگتا ہے جب میں آپ لوگوں سے سنتی ہوں یا پڑھتی ہوں ان کے کہے ہوئے وہ الفاظ، تو لگتا ہے کہ اگر میں 10 سال پہلے سنتی تب بھی اس ٹائم میں فٹ ہوتے تھے، 5 سال پہلے سنتی تب بھی اس ٹائم میں فٹ ہوتے تھے، آج سنتی ہوں، آج دہراتی ہوں تب بھی اس ٹائم میں فٹ ہوتے ہیں، اور جب مجھے مشکل آتی ہے، جب میں پریشان ہوتی ہوں، تو میں وہ ایک قول یاد کرتی ہوں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے دانتوں اور جبڑوں کے بیچ میں زبان رہتی ہے، بچ کر رہو، خیال سے رہو، سنبھل کر رہو، ہوشیار رہو۔ کس کس قول کو نہ دہرائیں، ہر قول سے جڑی ایک کہانی۔ رمضان عشق نشریات شروع کرتے ہیں، اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بھائی نے میرے کہا کہ آج کے دن کے اوپر ضرور بات ہوگی، اور یہ 3 دن رمضان میں جب آتے ہیں تو دل عجیب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بس صبر دے، ہمت دے، اور بس آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آتے ہیں۔ چوٹ تو زینب کے کلیجے پہ پڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے، جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے، اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA۔ ہم عوام ہیں یا رعایا، ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے۔
लेकिन हम नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायत हूँ चुका। कलम और स्क्रीन तक तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोगों के लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का एक बार फिर आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों ने अभी हमारी ट्रांसमिशन ज्वाइन की है, रमज़ान इश्क है नशरियात 24 न्यूज़ HD पर बराह रास्त आप हमारे साथ हैं। आज 19 रमज़ान ज़रबत का दिन। आज के दिन को ज़रूर आज के दिन को याद करेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें याद करना फ़र्ज़ है, बल्कि इसलिए कि वो दिन हमारे लिए क्या लेकर छोड़ कर गया है, क्या चाहते हैं हम अपने एक दूसरे से, क्या हमने दीन इस्लाम को समझा, क्या हमने अपने प्यारों की इनकी कुर्बानियों को कभी जानने की कोशिश की, उसको ज़रूर आगे हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद आलिया भाभी एक खातून को लेकर हमारे साथ होंगी, बहन को लेकर। उन बहन का दरअसल कहानी, एक शादी तलाक, दूसरी शादी तलाक, तीसरी शादी तलाक। एक औरत जब खुदा न खास्ता कोई भी एक बच्ची, एक बहन, एक बेटी, कोई रिश्ता होता है, बात पक्की होती है और वो बात भी टूटती है ना, तो वो इस बच्ची और इस औरत ज़ात पर पहला ठेस होती है। पहला उसके अंदर निशान आता है, उसके दिल पर, उसके दिमाग पर, उसकी सोच पर, उसके पूरी रूह पर। क्योंकि लोग ये कहते हैं अरे कोई लड़की में मसला होगा जो रिश्ता टूट गया, क्योंकि और तो किसी में बुराई हो नहीं सकती। मैं बहन बेटियों वाली हूँ, मैं खुद बहुत चीज़ों से गुजरी हूँ, इसलिए कह रही हूँ। और जब एक औरत अपना घर बसाने के लिए एक अटेम्प्ट करे, दूसरी अटेम्प्ट करे, तीसरी अटेम्प्ट करे, उसके बाद भी खड़ी रहे, एक बच्चा पास नहीं है, और जहाँ तक मुझे बताया था, जी आइए भाभी तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम भाभी।
थोड़ा सा माइक भाभी का नीचे कर दीजिएगा कोई आके। और भाभी ने जहाँ तक मुझे बताया था कि जो तीसरे उनके शौहर, साहब का शौहर थे, उन्होंने कत्ल करने की धमकी दी है। यहाँ तक कि भाभी का SRM बनी वेलफेयर ट्रस्ट में आके भाभी को हरासा करने की कोशिश की, भाभी को थ्रेट किया और ये कहा कि यहाँ आके मार के जाऊंगा। अल्लाह। भाभी की इजाजत से, भाभी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहाँ तक आपने मुझे बताया था, मैंने सही बताया है? बिल्कुल सही बताया। वो तीसरा शौहर अभी साबका नहीं हुआ, साबका नहीं वो उसके हुआ। निकाह में। औरत की सबसे बड़ी मुसीबत कि जो साहिबा होता है वही धमकियां देता है, और अगर औरत उसके निकाह में होती है तो माँ बाप के घर में भी नहीं रह सकती, बालों से घसीट के भी ला सकता है उसको। इख्तियार नहीं ना किसी को। हमने, औरत ने निकाह किया, अपने आप को सुपुर्द कर दिया उस मर्द के, इस उम्मीद के साथ कि वो साहिबा हैं। अगर वो साहिबा अच्छा है तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी, लेकिन अगर साहिबा अच्छा नहीं है तो हमें दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं मिलता। माया, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, हमारे मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, रिश्वत है, बहुत कुछ, बहुत मसले हैं। मैं तो सिर्फ एक ही तकलीफ को लेके ही बहुत तकलीफ में हूँ कि औरत की इज्जत, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, जैसे आपने कहा ना माँ बेटियों वाले हैं, यही मैं कहती हूँ, ये हमारी ही माएँ, हमारी बेटियाँ हैं। मैं कुछ भी दुनिया में ना बचा सकी ना, अपने मुल्क में अगर मैं कोई चीज़ ख़त्म ना कर सकी मुझे गम नहीं, लेकिन अगर मैंने अपनी माँ बेटियों को खो दिया, इनकी इज्जत और हुर्मत को खो दिया, तो मेरे मुल्क को, मेरी कौम को बेहतरी की तरफ कोई नहीं लेके जा सकता। औरत की बेरारवी मेरे लिए बहुत तकलीफ दे, और औरत पे जुल्म और उसकी बेइज्जती मेरे लिए बहुत तकलीफ दे। जो औरत मेरे पास आती है उसके ऊपर तरह तरह के जुल्म होते हैं, और पता ये चलता है बहुत कम उम्र में शादी की गई थी, 12 साल की, ना उसके पास तालीम है, ना उसके पास हुनर है, ना उसके पास कॉन्फिडेंस है, किस तरह खड़ी हो अपने पैरों पे। जब कुछ नहीं मिलता और ज़माने में अपने बच्चों को खिलाने के लिए निकलती है तो सबसे पहले उसकी इज्जत पर हमला, सबसे पहले वो चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, उसकी रेपुटेशन, उसका इमेज, उसका प्रोफाइल, सबसे पहले लोग एक्सरे कर देते हैं उसका और पोस्टमार्टम कर देते हैं। वो औरत या तो फाको मरे, अपने बच्चों को फाकों से मारे, करेक्ट, ठीक, अजियत में रहे। अगर वो ये चाहे ना कि रोड किनारे झुग्गी डाल के बैठ जाए तो खुदा की कसम उसको उसकी भी इजाजत नहीं है। मेरे पास जो औरतें यहाँ रहती हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, फिर भी यहाँ से नहीं जाती, SRM बनी शेल्टर होम से कहूँ भी तो नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? इस गर्मी में, इस शिद्दत में, इस जगह की तंगी में भी वो सिर्फ इसलिए मुतमईन है कि कोई रात को उठाकर खुदा ना खास्ता गलत निशाना तो नहीं बना। मैं बताती हूँ भाभी क्यों नहीं जाती, आपका तो ट्रस्ट है ना, मैं बताती हूँ क्यों नहीं जाती। वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो उस छत के नीचे अपने आप को महफूज समझती हैं। अल्फाज नहीं मिलते। जब मैं औरत की हुर्मत की बात करती हूँ, बोलते बोलते बहुत बोलने वाली हूँ ना, बहुत मेरे पास अल्फाज हैं, अल्फाज कम पड़ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता वो कौन सा लफ्ज लगाऊं कि औरत की इज्जत भी रह जाए और सबको मैसेज भी पहुंच जाए। इतनी तकलीफ दे चीज है। लेकिन जो मैं शेल्टर होम में बैठ कर देखती हूँ वो ऐसे ऐसे केसेस हैं कि मेरी रूह कांप जाती है, मेरी अजियत बहुत बढ़ गई। अभी मैं, और ये आना बैठना, इनके लिए बात करना, अभी आ रही थी तो मेरा पैर एकदम मुड़ गया। ये इतने प्रेशर्स हैं मेरे ऊपर, मेरे जहन पर इतने प्रेशर्स हैं। साथ में बच्ची ने कहा भाभी का, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, पैर मुड़ गया। ये पैर नहीं मुड़ा, ये मेरे जहन पे वो प्रेशर्स हैं कि क्या आज भी माया के शो में आके मैं इन बच्चियों के लिए कुछ कर पाऊंगी? क्या जो आज भी मैं बोल रही हूँ कोई मुझे सुन रहा है? क्या सुनने वाले में से किसी एक के दिल में भी कोई एहसास पैदा होगा? मेरे पास 5 मिनट अगर बोलने के लिए, तो 5 मिनट में क्या मैं पूरी दुनिया बदल सकती हूँ? क्या मैं लोगों के दिल बदल सकती हूँ? क्या मैं शेल्टर होम के लिए मैं इनको छतें दे सकती हूँ? हो जाएगा इंशाल्लाह, जरूर होगा, मुझे उम्मीद है। मैं 1 साल से ये सबसे कह रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है रब ताला की ज़ात से कि SRM बनी वेलफेयर ट्रस्ट इंशाल्लाह डेफिनेटली या तो उसके फ्लोर्स बनेंगे या उसकी एक्सटेंशन होगी, मेरा दिल मानता है। और इंशाल्लाह मैं ज़रूर कहूँगी रहमानी भाई से भी ख़ास दुआ करने के लिए, और आज दस्तरखान पे भी हम यही दुआ करेंगे कि किसी तरीके से भी, क्योंकि बहुत बुरा हाल है यार। आप लोग, मैं आप लोगों को, अभी हमारी टीम प्लान कर रही है, हो सकता है कि हम लोग बहुत जल्द SRM बनी वेलफेयर ट्रस्ट में आपको दिखाएं जाके। जगह नहीं है वहाँ पर, बहुत मुश्किल सबको जो है वो शेल्टर दिया हुआ है, आप नहीं समझ सकते, बहुत बहुत मुश्किल कैफियत है। क्या वो बहन हमारे साथ मौजूद है? बिल्कुल मौजूद, यहाँ बैठी हुई है? बिल्कुल यहाँ है। कौन सी बहन है? ये सेकंड रो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका फर्जी नाम? मेरा नाम सदफ है। सदफ है जी। सदफ, क्या हुआ है आपके साथ? बस मेरी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं देखा, बचपन से लेकर अभी तक। अभी इतना सुकून मिला जब भाभी का शेल्टर में आई है, अभी सुकून मुझे मिला। आपकी पहली शादी किस उम्र में हुई?
13 साल उम्र में, और निकानामी में 14 साल लिखे थे मेरे माँ बाप ने। जबरदस्ती की थी शादी? बस माँ बाप ने करवाई मेरी शादी। उससे फिर आपके कितने साल आपकी शादी रही? 9 साल रह गई मैं उनके बच्चे साथ। आपके हैं? जी 4 बच्चे हैं मेरी। उस शादी से 4 बच्चे आपके? जी। फिर आपकी वो कैसे खत्म हुई शादी? वो बस हर वक्त मारता था, पीटता था, उसकी माँ भी, उसका बीन भी। मैं नहीं बता सकती सब कुछ, मुझे उर्दू की प्रॉब्लम है, सही नहीं बोल सकती। कोई मसला नहीं है, दर्द बताने के लिए आपको जबान की जरूरत नहीं है। मेरे अभी भी उन लोगों के हाथों में निशानी है, सब मैं बर्दाश्त करती थी अपने बच्चों की वजह से, पीला अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से। इन्होंने खुद ही मुझे डिवोर्स भी दिया, मुझे घर से निकाला। फिर डिवोर्स दे दिया? जी। निकाल दिया घर से? जी। और बच्चे? बच्चे 3 बच्चे उसने लिया, और एक बच्चा छोटा मुझे दिया 1 महीने का। वो इसलिए दिया, वो ऊपर दूध पीता था। अल्लाह। फिर वो जब 8 साल के हुआ, वो भी मुझसे छीन लिया। उसको भी छीन लिया? जी उसको भी छीन लिया। उसके बाद में बिल्कुल पागल हो रही हूँ। वो भी छीन लिया मुझसे। मैंने इनकार किया उससे। मैंने कहा नहीं, मैं दुबई पे नहीं जाऊंगी, आपके साथ ऐसे गलत काम नहीं करेगी। उसने मुझे कहा आप जब ये काम नहीं करेगी तो मुझे कमा के नहीं देगी, मैं आपको तलाक देगी। उसने भी उस टाइम में पेपर और दिया, तलाक दिया, और मुझे मारा पीटा, घर से निकाला। फिर 1-2-3 साल में किसी का घर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, काम शाम करती थी। और मैंने अपने अम्मी को कहा मेरी शादी नहीं करवा अम्मी, मैं किसी के घर में झाड़ू पोछा कबूल करेगी, और मेरे नसीब मुझे साथ नहीं देते हैं, मेरी शादी नहीं करवा। फिर भी तीसरी शादी हुआ। जब तीसरी शादी हुआ, शादी किसने करवाई? दूसरी शादी भी माँ बाप ने करवाई। दूसरी भी माँ बाप ने करवाई? और देखा नहीं किससे करवा रहे, कौन है, कुछ चेक नहीं किया कि उसको पता किया वो क्या करता क्या नहीं करता? 55 साल का आदमी था, बस इतना मुझे पता है। फिर जब तीसरी शादी हुई, 55 साल की उम्र था। और इस बच्ची की उम्र इस वक्त अभी 20-25 के बीच की है, और वो 55 साल का आदमी है। और उस वक्त आपके पास आपका बच्चा था? जी मेरे बच्चा मेरे पास था। और वो कहता मैं दुबई लेके जाऊंगा। जी। आपने मना किया तो उसने कहा तुम मुझे कमा के नहीं दोगी? जी कमा के नहीं दूंगी। उसने कहा मेरी 3 शादी है, 3 बीवी उसकी, तब मुझे पता नहीं था उनकी शादियों का, न मेरी माँ बाप को पता था। फिर पता था आपके माँ बाप को? नहीं, उसको भी पता नहीं था। उसने कहा मेरी शादी वादी नहीं है। जब मैंने जैसे मना किया उससे, उसने फौरन मुझे तलाक दिया। आपके मना करने की वजह से? जी मना करने की वजह से। फिर जब 2-3 साल में किसी का घर में काम करती थी, अपना खुद अपना हाथों से कमाती तो और खाती थी, अपने बेटा को भी खिलाता था। ठीक है सदर, आप यही रुकना, मुझे बताना आपकी तीसरी शादी कैसे हुई इस वक्फे के बाद, ठीक है मेरी बहन? ठीक है, सो सॉरी। वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर
अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप पर सलामती की दुआ, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ये दुआ है। वालेकुम अस्सलाम आप पर भी। हम जब ये दे रहे होते हैं किसी को दुआ, तो क्या वाकई में दिल से महसूस कर रहे होते हैं? मुझे दुख होता है जब किसी बहन बेटी को इस तरह मैं रोते हुए देखती हूँ, और गलती उसकी ना होते हुए दूसरों की गलती वो भुगतती है, उस पर ज़्यादा गम होता है। रमज़ान इश्क़ के नशरियात में मेरे भाई मौलाना ज़हीरुल हसन नकवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं उनको अस्सलाम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर ज़हीर भाई। थैंक यू। ज़हीर भाई, आपने शायद सुना हो, आप माइक लगा रहे थे उस वक्त, ये बच्ची यहाँ पर बैठी है, मैं इनके पास जाऊँगी, बहन के पास इजाज़त के साथ। मैं इनकी कहानी थोड़ी सी सुनी थी कि बखुद ऐसा लगा जैसे पैरों में जान नहीं है, उठा ही नहीं गया मुझसे। सिर्फ इतना सुना था कि 13 साल की उम्र में घर वालों ने शादी कर दी, पेपर पर ये लिखकर कि वो 14 बरस की हैं। फिर उसके बाद 9 साल तक वो शादी रही और शौहर और ससुराल वाले सब मारते थे। 4 बच्चे हुए, तलाक दे दी, 3 को रख लिया, जो नौमौलूद था वो इनको दे दिया। जब नौमौलूद 8 साल का हुआ तो वो भी ससुराल वालों ने रख लिया। फिर माँ बाप ने इनकी दूसरी शादी कराई 55 साल के एक बड़े उम्र के आदमी से, जबकि उस वक्त इनकी उम्र कुछ 22 या 24 साल की थी। उस शख्स ने कहा कि तुम्हें मैं दुबई लेकर जाऊंगा, तो इन्होंने इनकार किया बहन ने, और उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे, माजर के साथ आप लोग मेरे भाई हैं, मैं ये अल्फाज बता रही हूँ लेकिन ये कहानी है, उन्होंने कहा जब तुम मुझे कमा के नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें रखूं क्यों। उन्होंने भी तलाक दे दी। एक औरत को गलत तरीके से उसको कमाई का जरिया बनाना। फिर इनकी तीसरी शादी कैसे हुई? आपकी इजाज़त से अगर मैं इन बहन को सुन लूँ, फिर आपकी रहनुमाई दोनों की चाहिए होगी मुझे। सदफ, जब उस शख्स ने भी आपको छोड़ दिया जो 55 बरस का था जी, फिर जो कि आपकी शादी माँ बाप ने कराई थी, दूसरी वाली भी जी, तीसरी शादी आपकी कैसे हुई? फिर तीसरी शादी भी माँ बाप ने करवाई, घर वालों ने। अल्लाह, क्यों करवाई तीसरी शादी? बस उन्होंने कहा तुम अपनी जवानी खराब नहीं करो, अब अभी आप जवान है, अभी ये है, कल तुम्हारा बाबी होगी, तुम क्या करेगी, हम मर जाएगी, ये है वो है। बस इनकी वजह से मेरी शादी की। तीसरी शादी किससे करवाई आपकी? तीसरी शादी भी गैर लोग थी, मतलब मामसेरी वाला तरफ की थी, पहाड़ वाला। अच्छा। वहाँ पर वो भी मुझे वहाँ लेके गई, शादी यहाँ पर की और वहाँ लेके गई। बोला वो आदमी ने, मेरे 8 साल की पहला बच्चा है सबसे बड़ा, और इसका सबसे बड़ा बच्चा 35 की साल के करीब था। अच्छा जी। फिर 8 साल का बोला था और 35 साल का था? जी, 35 साल का था। फिर उन्होंने ऐसे, मतलब उनका भाई भी आ रहा था मेरे घर में 1 बजे का टाइम, रात को 12 बजे का टाइम, और पेस्टर उठा के लेकर आता था। उनका भतीजा भी मुझे मारता था, पीटता था घर के अंदर, और मेरा शोर बेटा रहता, वो कुछ भी नहीं बोलता। जब वो जा रहा था वो भी मुझे मारता था, पीटता था। मैंने कहा ये क्या बात है, क्या आप लोग ऐसे करते? फिर अड़ोस पड़ोस ने मुझे बोला तुम गलत नहीं है ना, इसलिए तुम्हें मारता पीटते और तुम्हारे साथ ऐसे जुल्म करते, ये लोग हैं ऐसे। फिर भी मेरे नसीब ने मुझे साथ नहीं दिया। मैं अपने नसीब पर बहुत नाराज हूँ।
अल्लाहु अकबर। आपके माँ बाप को आपका दर्द नजर नहीं आया था सदा? मेरे माँ बाप ने कभी भी मुझे साथ नहीं दिया। उन्हीं के बच्चे और भी बहन भाई हैं आपके? जी। क्या उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है? नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। या मेरे मौला, या मेरे मौला। क्या सवाल करूं मैं ज़हीर भाई, रहमानी भाई, मैं क्या सवाल करूं इस बहन से? मेरी तो जबान हर वक्त तो एक अलर्टनेस नहीं नजर आ सकती। आप एक एंकर भी हैं ज़हीर भाई, हर वक्त तो हम इतने अलर्ट नहीं हो सकते। हम कभी तो इंसान हैं, कभी तो टूटेंगे हम। और औरत तो बहुत जल्दी औरत से लिंक करती है। जो माएँ बहनें सब घर में भी बैठ के देख रही है, मुझे पता है कितने की आंखों में आंसू होंगे, वो फौरन लिंक कर जाएंगी। कितनी डॉक्टर साहिबा परेशान हो गई, वहाँ मदीहा परेशान है, आप मुझे नहीं पता किस तरह। लेकिन रहमानी भाई, ज़हीर भाई, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि जो बहन का केस है उसको 2-3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो जो है ना वो मैं ये अर्ज़ करूँगा, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को खल्क़ किया इम्तिहान के लिए, और जितने भी इम्तिहान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इंसान को आजमाइश के तौर पर आते हैं, उनका आखिर में इंसान को सिला मिलता है। इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो है ना वही है। उसकी मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। हत्ता ये कि फॉर एन एग्जाम्पल, हत्ता ये कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी इंसान की ज़िंदगी भी ले लेता है, तब भी बाहर सूरत उसको अजर अजीम अता फरमाता है, इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया में इंसान को यहाँ पर अयाशी करने के लिए नहीं भेजा, सुकून और इत्मीनान हासिल करने के लिए नहीं भेजा, नेमत इलाही से सिर्फन इस्तिफादा करने के लिए नहीं भेजा। खुदा ने भेजा है कि हम यहाँ इस दुनिया में आए हैं ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा इम्तिहान ले सके, और जो आसाइशें हैं एब्सोलूट वो आखिरत के लिए हैं। अब इनके साथ जो हुआ इसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं। पहली बात, मैं जब भी ये सुनता हूँ मेरा जहन कबूल नहीं करता कि मर्द यानी हस्बैंड या भाई या कोई भी, मतलब एज ए मैन, वो हाथ कैसे उठा लेता है सिन्फ नाज़िम। समझ आता, यानी मेरी समझ में वाकई मैं नहीं समझ सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आती। एक्सेप्टेंस जो दी, ये तो बिल्कुल इस किसी और के आई कांट रियली, आई कांट। और एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ बड़ी एहतियात के साथ, चूँकि हम लोग वेस्ट में रहते हैं और वहाँ पर अक्सर ये सवालात आते हैं। कुछ लोग जो तोजी करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में जो इजाज़त दी है कि आप तंबीह कर सकते हैं, मैं बड़ी एहतियात के साथ जुमले जो है ना इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी थोड़ी सी आप लॉजिक को देखें और उसकी रीज़न को देखें। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत का नानो नफ़का मर्द पर करार दिया है, हत्ता नानो नफ़का के मुकाबले में जो इज़दवाजी तलाक़ात की ज़िम्मेदारी है उसके साथ खातून की ज़िम्मेदारी बच्चे को दूध पिलाना भी नहीं है। यानी शरीयत ये कहती है कि हत्ता माँ जो है वो ये कह सकती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाती हूँ, मुझे इस दूध पिलाने का अजर चाहिए। नानो नफ़का मर्द ने देना है, घर शेल्टर मर्द ने देना है, सारे अखराजात मर्द पर हैं। औरत की जिम्मेदारी क्या है कि वो उसके मुकाबले में इफ़्फ़त का ख्याल करे, और अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर वो ऐसी गलती का इर्तिकाब कर बैठती हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द से ये कहा कि उसको तंबीह करो, उसको सजा दो, लेकिन फिर भी उसे तलाक ना दो, यानी उसे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर न करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस हद तक इंसान को अपनी खातून का, अपनी बीवी का ख्याल रखने का कहा है और इस माशरे के निज़ाम का। लेकिन वाकई ये जहालत है, इसमें कोई शक नहीं है, और इन मसाइल को खोल कर बयान नहीं किया जाता, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर ये कि सिन्फ नाज़िक है, खातून है,
13 साल की उम्र में शादी की झूठ बोल के गुनाह है, हराम है, हत्ता उस बात पर जो है वो निकाह को फस्ख किया जा सकता है। और उसके साथ जो है वो अगर आप आगे बढ़ें, जो दूसरी शादी की जहाँ पर मर्द ने जो आपने जुमला कोड किया है, वाकयान इंसान अगर बैठकर उस पर एक लम्हे के लिए सोचे तो अक्ल तस्लीम नहीं करती। गैरत कहाँ है, हमीयत कहाँ है, वो आबरू कहाँ है, वो इंसान का ज़मीर कहाँ है। लेकिन फिर एट द एंड जो है ना, मैं ये समझता हूँ माजरत के साथ, ये जो खाना है, ये जो माशरती निज़ाम है, ये जो बहुत कुछ है, उसके असरात ये हैं कि सुम्म बुक्म फहम ला युबसरून, दिल मर जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ने माह मुबारक रमज़ान जो है ना तज़किया नफ्स के लिए दिया है कि हम तज़किया नफ्स करें ताकि देख सकें कि ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक है और हम पर इसकी जिम्मेदारियां हैं। हमने मरना है, अल्लाह की बारगाह में जाकर जवाब देना। अल्लाह अकबर। रहमानी भाई एक सेकंड बोल के उनका नंबर ले लीजिएगा। पहले रहमानी भाई से हो गए, उन अजीब हो गए थे, बिल्कुल वही वाली से आपने माशाल्लाह फिर भी बयान कर दिया, मैं फिर भी बोल पड़ी। ये बिल्कुल नहीं बोल पाते, ये भी बिल्कुल चुप हो जाती हैं। ये इन लोगों की मैं मिजाज से वाकिफ़ हूँ, वाकई तस्लीम नहीं कर पाती। कुरान मजीद फुरकान हमीद का अंदाज़ है वआशिरुहुन्ना बिलमारूफ। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने औरतों के हवाले से कहा कि इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से जा रहे हैं, हुजरे के अंदर मौजूद हैं, नकाहत से बाहर तशरीफ़ लाए असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी जुमले फरमाया, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और जो तुम्हारे घर में अल्लाह की बांदियाँ उनके हक़ को अदा करो। ये जो आखिरी जो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेज सुना है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से। अभी मैं मारपीट की बात सुन रहा था, वो हदीस मुझे याद आ गई जो मैंने 3-4 दिन पहले कैसे उठाते हैं नबी अलैहिस्सलाम थे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शाह फरमाते हैं कि आयशा जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो मुझे मालूम चल जाता है। अंदाज देखिए, अम्मा आयशा नाराज़ होती हैं, प्यारे आका हाथ नहीं उठा रहे, तंज नहीं मार रहे, सिर्फ क्या आका करीम का लहजा क्या है कि आयशा मुझे मालूम चल जाता है। अम्मा आयशा ने कहा कैसे? कहा कि जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो कहती हो रब्बे इब्राहिम की कसम, और जब खुश होती हो तो कहती हो रब्बे मोहम्मद की कसम। अल्लाह। अम्मा आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, सिर्फ ज़बान से मैं आपका नाम नहीं लेती मगर दिल में तो आप ही रहते हैं। एक ये घराना है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तरबियत हमें आका करीम दे रहे हैं और मर्दों को शर्म आना चाहिए। हाथ कैसे उठा लेते हैं इस तरह की बात, जानवरों से बदतर जो हो जाए ना, किस तरह से उसकी दिमागी कैफियत। मैं कही थी जहीर भाई, अगर कॉलर है मैं उनको पहले ले लेती हूँ। हैं हिना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, बेटे सामने से हट जाओ, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि एक बच्ची की जब बात पक्की होके टूटती है ना जहीर भाई, तो उसकी पर्सनालिटी और उसकी शख्सियत पर पहला निशान उस वक्त आता है। किसी की बात पक्की होकर भी टूट जाए, मंगनी होकर भी टूट जाए, तो निकाह और शादी एक, फिर दूसरा, फिर तीसरी क़यामत। और अब ये हालत है कि सदफ अब क्या चाहती हैं कि मेरे बच्चे उनको दे दिए जाए। अभी मैं अपने बच्चों को मतलब मांगना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ मैं अपने बच्चों का साथ रहूँ, अपना हाथ से कमाऊँ और उसको भी खिलाऊँ और ख़ुद भी खाऊँ, ये चाहती हूँ। बस शादी से तौबा करती हूँ, मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। और अल्लाह आलिया बाबी को और सारी मब्बू को वो जन्नतुल फिरदौस करे जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब किया। हमारे दिल से ये दुआ रात दिन को निकलती रहती है। इस तरह की जो प्रोग्राम है उससे एक मैसेज हो जाता है कि ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा बेशर्मी फैल रही है, ये दीन से दूरी है। अगर हम दीन से कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ें, हम अहदीस रसूल को अपने बच्चों की तरबियत में नाफिज कर दें तो बच्चे महकते हुए फूल पैदा होंगे। अल्लाह के नबी जा रहे हैं, अज़वाज रसूल साथ हैं, एक ग़ज़वा के दौरान आप क्या फरमाते हैं? ऊँट तेज़ चला रहा है, चलाने वाला ऊँट तेज़ चला, आप फरमा रहे हैं कांच का घर है आहिस्ता चलाओ, कांच का घर है आहिस्ता चलाओ। मेरी तो मैं हिना कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? हिना बात कर रही हैं? मैं हिना बात कर रही हूँ। जी हिना, कराची से? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी हिना, मैं भी मेरे ना 7 महीने हो गए मेरे शौहर मुझे छोड़ के गए और लेके नहीं आ रहे और कह रहे अपना सामान उठा लो, मैं बहुत परेशान हूँ। थोड़ा सा मेरी बहन क्लियर बोलेंगी मुझे कि
7 महीने हो गए आपके शौहर छोड़ के चले गए? जी, मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मुझे घर छोड़ के चले गए थे। कह रहे थे कि ना मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन लेने नहीं आया। उसके बाद भी आके बोल रहे हैं कि ना तुम्हारे अब्बू को ना, अब्बू ने बुलाया। जब मेरे अब्बू गए तो कह रहे हैं कि अपना सामान उठा लो। और फिर मेरे खालू और मेरे अब्बू मुझे दोबारा लेके गए। 2 दिन रही हूँ घर में। मेरे शौहर सही से उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके बाद जो बात हुई है, 2 दिन घर पे रही हूँ। उसके बाद फिर दोबारा इनके अम्मी अब्बू मुझे छोड़ के चले गए और कह के तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर, हमारा बेटा हमारे घर। और अभी इसके बाद कह रहे सामान उठा लो अपना। हिना, मेरी बहन 2 मिनट रहिएगा, मैं आपकी ही कॉल से वक्फे के बाद आती हूँ। मैं अपने उलमा कराम से पूछूंगी और इस सवाल के साथ जाऊंगी। आप सब लोगों से करती हूँ, सब अपने आप से भी करती हूँ, भाभी से, बहन से, भाइयों से, आप सब से, अपने आप से, कि घर और रिश्ते खराब करने वाला दरअसल है कौन? वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम देखिए प्रोग्राम बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। वजीर आजम की 3 घंटे तक JIT में पेशी। लंदन फ्लैट्स, बैरून मुल्क फैक्ट्रियों, बच्चों से लिए गए तहाइफ और कौम और पार्लियामेंट से खिताब में तजाद के हवाले से सवालात। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकेंगे। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। हमारे दामन पर करप्शन का कोई दाग नहीं। अगले बरस बैठने वाली JIT सबका एहतसाब करेगी। पेशी के बाद वजीर आजम की मीडिया से गुफ्तगू।
वजीर आजम हाउस में मुशावरती इजलास, शहबाज शरीफ, चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, आबिद शेर अली, परवेज रशीद और तारक फातिमी शरीक। नवाज शरीफ की पेशी और बाद की सूरत हाल पर गौर, सिर्फ शेर ही नहीं बल्कि शेर दिल। मरियम नवाज का ट्वीट। स्पीकर की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, सऊदी अरब कतर तनाज़ा, कुलभूषण केस और कलअदम तंजीमों की सोशल मीडिया पर सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। अयाज सादिक कहते हैं सोशल मीडिया बंद नहीं कर सकते। एक हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में 35 करोड़ 89 लाख डॉलर्स की कमी, ज़खायर 20 अरब 15 करोड़ 78 लाख डॉलर रह गए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट। आजाद कश्मीर का 94 अरब 14 करोड़ रुपए का बजट पेश, तरक्याती कामों के लिए 23 अरब 28 करोड़ रुपए मुख्तस। और चैंपियन के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश की भारत के इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका।
कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाके छिटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी।
अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03।
اللہ خیر. کہہ دیجئے سبحان اللہ کہہ دیجئے. ہیں تو غلام تو کہنے میں کیا شرم کیا جھجک, جب محبت ہے تو کھل کے کیجئے, کھل کے اظہار کیجئے, کیا پتہ کون سی کھڑی قبولیت کی ہو. جزاک اللہ خیر بیٹا. جویریہ سلیم, رمضان عشق ہے نشریات میں ایک بار پھر کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید. آپ 24 نیوز HD پر براہ راست ہمارے میرے علماء کرام میں میرے بھائی ظہیر بھائی اور رحمانی بھائی یہاں موجود ہیں. آج ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے جو اور پاکستان میں اس وقت موجود ہیں. آج ماشاءاللہ میں 2-3 دن سے نوٹ کر رہی ہوں کہ پروردگار مجھے مہمان جیسی نعمت سے اور رحمت سے نواز رہا ہے. ہمارے ساتھ ہیں سید ضیاء النور صاحب. السلام علیکم. مسلم ہینڈز ہیں ضیاء بھائی, ون آف دا لیڈنگ NGOs in Pakistan in the fields of awareness raising, disaster management, crisis intervention, emergency relief, healthcare and education, exclusively with 16,000 students comprising 70% of orphans and needy children across Pakistan and Azad Jammu and Kashmir and its schools. MashaAllah. Humanitarian and relief work کے بارے میں سنیے کہ 2002 میں افغانستان کے ارتھ کویک پر اپنی خدمات اپنے پورے ادارے کے ساتھ, 2003 میں ایران کے ارتھ کویک پر پہنچ پڑے فرشتوں کی طرح, 2005 میں آزاد جموں اینڈ کشمیر جس کی میں نے بھی لائیو ٹرانسمیشن کی تھی, اور مجھے یاد ہے وہ وقت جب گھر لوگوں کے ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہیں وہ ختم اور تباہ ہوئے تھے, جو قیامت تھی اس کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. 2010 میں پاکستان میں جو سیلاب کے سلسلے ہوئے اس پر ان کی خدمات, اور اسپورٹس فار ڈیولپمنٹ ٹو دا اسٹیٹ کے حوالے سے ضیاء بھائی ہمارے ساتھ یہاں موجود مسلم ہینڈز کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. ضیاء بھائی ویلکم ٹو پاکستان آلسو. ماشاءاللہ آپ کا جو ہے سفر, جیسے ظہیر بھائی بھی ہمارے دینی خدمات کے حوالے سے ان کا سفر بہت رہتا ہے ماشاءاللہ. آپ کا ماشاءاللہ UK اور ہر جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں, اس کے لیے بہت ساری دعائیں. جزاک اللہ خیر. ان تمام لوگوں کی جن کی دعائیں آپ نے لی ہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی دعا کرے اس کی دعا کے وسیلے سے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے. 50 ممالک میں کر رہے ہیں, 50 ممالک میں کر رہے ہیں, مطلب ان کا سرکل ماشاءاللہ. جیسے بھی ہم جس خدمت میں ہماری جہاں بھی ہم کام آ سکیں ضیاء بھائی ضرور بتائیے گا, ہمیں بہت اچھا لگے گا. جزاک اللہ خیر. یہ مل کے ہے جی, ٹیم ورک ہے. ایبسلیوٹلی. خواتین و حضرات, رمضان عشق نشریات میں اب ذرا سب سے اہم موضوع پر آ جائیں. 19 رمضان اس موضوع پر آ جائیں. ضرب لگنے کا دن اس موضوع پر آ جائیں. میں بریک میں عجیب سی کیفیت میری ہو گئی اظہر بھائی آپ کے آنے سے پہلے. میں کہتی ہوں مجھ سے 19 رمضان 21 رمضان اور محرم کے شوز کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. میرے مانی بھائی سے کہہ رہی میرے لیے بہت مشکل ہو جاتے ہیں. آج کا دن میں کہتی ہوں کہ جب دہرائی جاتی ہے وہ بات کہ وہ موقع وہ لمحہ جب ابن ملجم چھپا بیٹھا تھا, اس وقت سے لے کر اب تک زخم تازہ ہے, غم تازہ ہے, تکلیف تازہ ہے. اللہ پاک مرتے دم تک یہ درد کا احساس میرے اندر تازہ رہے, تاکہ مجھے پتہ چلے میرے اپنوں نے میرے پیاروں نے کیا قربانیاں دی. کوئی غلط کمی بیشی ہو جائے اس کے لیے میں معذرت, کیونکہ میں ظاہر ہے خود علم کی طالب ہوں. مہمان ہے, میں چاہوں گا پہلے ظہیر بھائی سے, پھر اس کے بعد. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایام شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں, مجتہدین عظام کی خدمت میں, تمام تر ناظرین کی خدمت میں, آپ سب کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں, کیونکہ آج 19 گزر چکی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کوفہ کی صورتحال کچھ اس طرح کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ضربت لگ چکی ہوئی ہے, اور حکیم نے آ کر معائنے کے بعد یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یا امیر المومنین آپ اپنی وصیتیں کر لیجیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زہر جس میں اس تلوار کو بھگویا گیا تھا
وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ مولا کے سر پر جب ضرب لگی ہے تو اندر تک سرات کر گیا، جس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ جو واقعات ہمیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی سے ملتے ہیں، جو شب ضربت کے حوالے سے ہیں، مولا نے کل رات کا جو افطار تھا وہ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں کیا تھا، اور افطار کے وقت جب 3 ڈشیں لائی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات میں درس ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ یہ وہ مخلوق خاص ہے جن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کنت کندن مخفیہ فحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ خدا فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانوایا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق خاص کو خلق کیا کہ وہ میری پہچان کروائیں۔ انہوں نے اللہ کے احکامات کی ہر معاملے میں پہچان کروائی ہے اور احکامات اسلامی کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ 3 ڈشیں کیا تھیں؟ کھجور، نمک اور دودھ۔ اور ان کے متعلق بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی کیا آج سے پہلے بھی میں نے 3 چیزوں سے افطار کیا ہے؟ 2 اٹھا لو، 1 رہنے دو۔ اب شہزادی نے چاہا ہوگا کہ کھجوروں کو یا نمک کو اٹھا لیں، مولا فرماتے ہیں نہیں، دودھ اور کھجور کو اٹھا لو، نمک کو رہنے دو۔ سبحان اللہ۔ نمک کے ساتھ افطار کیا ہے، اور پھر آج ہی کی رات تھی، بلکہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو اندازہ تھا، پتہ تھا، لیکن کس چیز کا اندازہ تھا؟ امیر المومنین رات کے وقت ماہ مبارک رمضان میں باہر نکلتے تھے، صحن میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور بار بار اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ پھیر کے کہتے تھے لقاء اللہ قریب ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ یعنی مولا کائنات کو بے چینی تھی اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کی۔ شاید جو ظلم و ستم ہوئے تھے اب وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اور پھر آج کی رات، یعنی کل رات جو گزر چکی ہے، 18 اور 19 کی رات کو جب چلنے لگے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جانور اور پرندے جو ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک بصیرت ہوتی ہے۔ مرغابیاں تھیں امام کے گھر میں، مرغابیوں نے امام کی ابا پکڑ لی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ مولا آج نہ جائیے، آج خطرہ ہے آپ کی زندگی کو۔ امام نے مرغابیوں کو دیکھا ہے، پیار کیا ہے ان سے، اور اپنی بیٹی کو وصیت کی ہے، کہا بیٹی ان کا خیال رکھنا، یہ بے زبان ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی نا ایک اپنی بہن کی، یہاں پر امیر المومنین کی سیرت کو دیکھیے، امام فرماتے ہیں یہ بے زبان ہیں، ان کا خیال رکھنا، اور اگر ان کو وقت پر کھانا اور پانی نہ دے سکو ان کو آزاد کر دینا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امیر المومنین مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر یہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی جو ہے وہ الٹے منہ لیٹا ہوا ہے۔ مولا کائنات اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھو نماز کا وقت ہے، اور یقیناً کہا ہوگا تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں۔ نماز میں مشغول ہوئے ہیں، جب حالت نماز میں تھے، سجدے میں تھے، تو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے وار کیا ہے۔ میں نے اکثر یہ جملہ کہا ہے، ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر، ہم کس علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں؟ وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کہ جن کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اور جانتے ہیں کمزوری کیا ہے ان کی کمزوری یہ ہے کہ جب جگر خار ہندا جو ہے اس نے 3 ٹارگٹ دیے تھے اپنے حبشی غلام کو، کہا ان تینوں میں سے کسی ایک کو ٹارگٹ کرنا ہے، سب سے پہلے رسول خدا، کہا نہیں کر سکتا، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی ابن ابی طالب سائے کی طرح رہتے ہیں، میں رسول خدا پر حملہ نہیں کر سکتا۔ کہا پھر علی ابن ابی طالب پہ کرو، کہا ان پر بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے ان کی 4 آنکھیں ہوں، وہ آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں، ململ کا کرتا پہن کے بغیر زرہ کے جا کے لڑتے ہیں۔ کہا پھر حمزہ سید الشہداء، کہا ہاں ان پر حملہ کر سکتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب گمسان کا رن پڑتا ہے آنکھیں بند کر کے حملہ کرتے ہیں۔ پیچھے سے وار کیا۔ اب دشمن انتظار میں بیٹھا تھا کہ علی کی کوئی کمزوری ساتھ میں آئے۔ جانتے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب کی کمزوری کون سی تھی؟ جب مولا کائنات علی بن ابی طالب کے پاؤں پر تیر لگا ہے، تیر کھینچنا چاہا، درد ہوا، رسول خدا نے فرمایا صبر کرو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حالت نماز میں جانے دو۔ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں اور جب کہا نا اللہ اکبر،
اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے. اب جب تیر کھانچا ہے تو پتہ ہی نہیں چلا کب پاؤں سے تیر نکل گیا. دشمن نے جان لیا کہ اگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب پر حملہ کرنا ہے تو حالت نماز میں کرو, حالت سجدہ میں کرو, اس کے علاوہ مولا کائنات پر حملہ نہیں کیا جا سکتا. اس حالت میں حالت نماز میں سجدہ کیا. اور یہیں پر شاعر کہتا ہے کثیرہ میسر نشد ان سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت. کعبہ میں ولادت ہوتی ہے, مسجد میں شہادت ہوتی ہے. اور پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا اگلا ایک جو سیگمنٹ ہمیں ملتا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب حالت زخمی ہیں اور خون ریزی ہوئی ہے اور گھر میں جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر جو بی بی زینب جی وہ بتائیے گا. جی بالکل, اس کو کنٹینیو میں کہوں گی کہ یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے. میں بھی کسی اور ہی جگہ پر ہوں, میں کسی اور ہی کیفیت میں ہوں, زیادہ کچھ نہیں بولوں گی. جلدی سے واپس آئیے. جزاک اللہ. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ. وزیر اعظم نواز شریف کی جے آئی ٹی میں پیشی کی اندرونی کہانی 24 نیوز سامنے لے آیا ہے. وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کے سامنے دیا گیا اپنا تحریری بیان جے آئی ٹی کے سامنے بھی دہرایا ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے بتایا کہ لندن جائیدادیں قطری خاندان کے ساتھ میاں شریف کی کاروباری سیٹلمنٹ کے نتیجے میں ملی تھیں, جبکہ تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے خاندان کے بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے, جس پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میڈیا بیانات کی کوئی نہیں, عدالتی بیانات کو ہی مد نظر رکھا جائے. مزید اندرونی کہانی جانیں گے بشیر چودھری سے. بشیر بتائیے گا جس مقصد کے لیے پھر جے آئی ٹی بنائی گئی تھی کہ وزیر اعظم اپنی تمام اثاثوں کی منی ٹریل پیش کریں, وہ مقصد تو پھر آج کی پیشی میں پورا نہ ہوا. جی بالکل, وزیر اعظم نواز شریف کی آج جے آئی ٹی میں پیشی کی اندرونی کہانی 24 نیوز سامنے لایا ہے اور جو جس مقصد کے لیے جے آئی ٹی بنائی گئی تھی کہ منی ٹریل سامنے لائیں, تو اس حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف نے جو دستاویزات پارلیمنٹ کے اندر پیش کی تھیں وہی دستاویزات انہوں نے دوبارہ وہاں پر پیش کی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ گلف سٹیل مل تشکیل پائی جس کی قائم ہوئی, کس طرح سے اس کو بیچا گیا اور رقم جو ہے وہ جدہ منتقل کی گئی, قطری خاندان کے ساتھ کاروبار طے بنائے گئے, پھر ان کاروبار کو کی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ لندن فلیٹس جو ہے وہ پیش بنائے گئے یا خریدے گئے. تو یہ سارے جو تفصیلات ہیں وہ تو وزیر اعظم نے آج اس کے سامنے رکھی, لیکن وزیر اعظم کے وکیل مخدوم علی خان نے جو وزیر اعظم کا تحریری بیان سپریم کورٹ میں جمع کرایا تھا, وزیر اعظم نے اس کو بھی دہرایا ہے اور اس میں کہا ہے کہ لندن جائیدادیں جو ہے وہ قطری خاندان کے ساتھ میاں شریف کی کاروباری سیٹلمنٹ کا نتیجہ تھیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ 1997 کے بعد ان کا کاروباری معاملات سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی جو الزامات تھے ان کو مسترد کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک پیسہ بھی انہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک نہیں بھیجا. جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جو انہوں نے وزیر اعظم جو بحیثیت وزیر اعظم قوم سے خطاب کیا یا پارلیمنٹ میں تقاریر کی, تو اس پر وزیر اعظم نے کہا کہ پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے اس پر کسی عدالت میں کوئی جو ہے وہ کارروائی نہیں ہو سکتی, کوئی بحث نہیں ہو سکتی, اس لیے اس کو جو ہے وہ یہاں پر زیر بحث نہ لایا جائے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ وہ آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے اس پر یقین رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے آج وہ جے آئی ٹی میں جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں ایک عام شہری کی طرح, اور اس کے آئین اور قانون کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں, اسی لیے پیش ہوئے ہیں. بہت شکریہ بشیر چودھری, آپ نے اپڈیٹ کیا. ایک پیمپرز
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जलने पे इसको के रोने को और मस्जिद में इंसाफ, इल्म हिकमत, शुजात, सादगी का पैकर, दुश्मनाने दीन के लिए हैबत की अलामत, मौला अली अलैहिस्सलाम का खुदावंदे बुजुर्गो बरतर के हुजूर झुका सर, खुशू व खुजू का ये आलम कि अपनी सांस की आवाज भी ना सुनाई दे। ऐसे में मलऊन अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम की जहर आलू तलवार ने मौलाए कायनात पर वार कर डाला।
तलवार का मौला के जिस्म को छूना था कि यकलक आसमानों से मलाइक का वावीला शुरू हो गया, सियाह आंधियां चलने लग गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लब से नोहा जारी हो गया। उठ उठ के खा आसमान लरज उठे। वार इतना कारी था कि अबू तुराब की जगह कोई और होता तो न सह पाता, मगर हैदर तो फिर हैदर है। उड़ाती है जो तो मैं हैरान कभी नूर तक न पहुंचा। यही सिलसिला तरीकत, यही सिलसिला हकीकत, जो अली तलक न पहुंचा वो हुजूर तक न पहुंचा। उठ उठ के अल्लाहु अकबर। एक बार फिर आपको करते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिन लोगों ने अभी नशरियात अब से देखना शुरू की हैं, मैं उनको बताती चलूँ, हम आज रमज़ान इश्क है में, वैसे मैं आज क्यों कहूँ, मेरी ज़िंदगी पूरी उस घराने के ज़िक्र में गुज़रे। अल्लाह पाक कबूल कर ले, बस उस ज़िक्र को भी कबूल कर ले, उस नियत को भी कबूल कर ले, उस मोहब्बत को कबूल कर ले। उनके गम में, उनकी कुर्बानियों को सुन के मेरी आंखों से जो आंसू निकलते हैं दुआ बन के, या परवरदिगार तो उनको भी कबूल कर ले। मैं तो बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, मुझे वाकई दुआ मांगना नहीं आता, लेकिन पता नहीं तुझे मुझ गुनाहगार की कौन सी बात भा जाए, इसलिए कहती हूँ ज़िंदगी उनके ज़िक्र में गुजरे। 19 रमज़ान ज़र्ब का दिन, आपके बारे में क्या ज़िक्र करूँ, क्या बात करूँ, सुनते ही रहने का दिल चाहता है। यही कहा अपने भाइयों से भी कि बस बात कीजिए उनकी, आज वो बात कीजिए कि मैं आज के बाद हर बात फिर उनकी करूं। मेरे साथ अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब मौजूद। अस्सलाम वालेकुम शहंशाह भाई। आपको भी नशरियात में आज खुश आमदीद कहते हैं। वक्फे पे जाने से पहले ज़हीर भाई वाक़या बयान कर रहे थे, और ये वाक़या उसी वक्त के हिसाब से जो उस वक्त क्या हो रहा था, मैं कहूँगी ज़हीर भाई ज़रा सा उसको हम बता दे चलिए। जी, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जब ज़रबत लग चुकी, जब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ज़रबत लग चुकी तो असहाब ने देखा कि खून रेजी हो चुकी है और जिस्म में ज़ोफ़ है। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को सहारा दिया और सहारे के साथ लेकर चले घर की तरफ। दरवाज़े के करीब जब पहुँचते हैं तो मौला कायनात फरमाते हैं कि मेरे असहाब, मुझे खुद चल कर घर जाने दो। अर्ज़ की, मौला आपके सर पर ज़रब लगी है, खून रेजी हो चुकी है, बदन में ज़ोफ़ आ चुका है, मुश्किल होगा आपके लिए, हम आपको अंदर तक छोड़ आते हैं। तो जो मौला कायनात का जुमला था, फरमाया कि मैं जानता हूँ मेरे ज़ख्मी होने की ख़बर मेरे घर पहुँच चुकी है। मेरी बेटी ज़ैनब उम्मे कुलसूम यकीनन गिरिया कर रही हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके गिरिए की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे। और मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि मौला कूफा है,
آپ کی ظاہری خلافت ہے. آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کی بیٹی زینب و ام کلثوم کے رونے کی آواز آپ کے اصحاب کے کانوں تک پہنچے. کوفہ کا منظر وہ کیسا ہوگا جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا علی کے لہجے میں بازار کوفہ میں اس مجمع میں خطبہ دے رہی تھی جس کے اندر شرابی بھی موجود تھے, جس کے اندر قاتلان حسین بھی موجود تھے, جس کے اندر قاتلان علی اکبر و علی اصغر بھی موجود تھے. یہ واقعات یقیناً ہمارے لیے درس بھی ہیں بائن معنی کہ ہم جہاں پر ان کا ذکر کریں وہیں پر ان کے کردار کو سمجھ کر اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. ابھی 1 منٹ ہے. جی بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ان کا کردار ہمارے لیے جس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. مولا کائنات علی ابن ابی طالب رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. ان کا کردار بچپن سے لے کر ان کی شہادت تک, ان کا ہر عمل. ابھی جو بات بھی ہو رہی تھی میں اس سے بھی ریلیٹ کروں گا کہ اگر معاشرے میں ہم ان ہستیوں کے کردار کو سمجھ کر اپنا لیں, ان کے کردار کو دنیا کے سامنے بیان کریں, تو یقیناً یہ جو مشکلات ہوتی ہیں, یہ جو مسائل ہوتے ہیں, یہ ختم ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ ہم دین سے دور ہیں, ہم نے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, ہم نے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو اس حد تک پڑھا نہیں ہے اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی, جس کی وجہ سے آج نقصان ہو رہا ہے اور آج نفرتیں ہیں اور آج دشمنیاں ہیں اور آج یہ ظلم و ستم ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. حضرت حضرات وقفے پہ جاتے جاتے آپ کا ایک ارشاد ہے کہ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے. ذرا سوچئے گا, اتنے میں ہم واپس آتے ہیں, اس ذکر کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہی ہے اس قوم کے رونے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ بچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شوام, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں
मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान की कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं।
और सरबलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सरबलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर सांस को आप हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त 24 न्यूज़ HD पर देख रहे हैं रमज़ान इश्क है। आज 19 रमज़ान के हवाले से ज़िक्र हो रहा है हज़रत करमल्लाहु वजह के हवाले से कि आज ज़रबत का दिन है। आज क्या मामलात हुए थे। ज़हीर भाई और नूर रहमानी भाई ने शुरू से प्रोग्राम शुरू हुआ और मैं बात करना शुरू हो गई कि 18 और 19 के बीच की अफ्तार कैसी थी। ये सुना, ये जाना, जब जाने लगे तो आपका रास्ता रोका उन बेज़ुबान जानवरों ने, रोकने की कोशिश की, जबकि आपको मालूम था। ये तमाम सफ़र, ये तमाम ज़िक्र जारी है, हमारे साथ रहिएगा। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब, ज़हीर भाई हमारे साथ मौजूद और ज़िया भाई आप भी हमारे साथ हैं। रहमानी भाई, जब मैंने आपसे सवाल किया प्रोग्राम शुरू होने से पहले, मैं शहनशाह भाई को और ज़हीर भाई को बताऊं, तो मेरी कैफियत, एक बच्चे ने यहाँ पर नोहा खानी की और मेरी कैफियत अजीब हो गई, क्योंकि एक इंसान एक कैफियत में साइकोलॉजिकली आ जाता है। वैसे तो ज़ाहिर होता है, लेकिन और ज़्यादा अजीब तबीयत। तो उसमें मेरे आंसू आ गए शायद। तो मैंने रहमानी भाई से कहा, रहमान भाई उस शख्स ने उसको क्या लफ्ज़ बोलूँ, उस शख्स को किस तरीके से पुकारूँ कि उस जहन्नुमी के सोचते वक्त भी रूह नहीं काँप उठी। तो आपने फिर हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र कर दिया और मेरी रूह और काँप उठी, फिर मेरी रूह और काँप उठी। फिर नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो खालिक, मालिक और राज़िक है, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम किन का जिक्र कर रहे हैं? किन का जिक्र? उनका जिक्र कर रहे हैं कि जिनका जिक्र करना इबादत है, अल्लाह, जिनसे ईमान रखना मोहब्बत है, जिनसे बुग़्ज़ रखना कुफ्र है। हम आज उनका जिक्र कर रहे हैं कि जो फ़ातह बदर हैं, जो फ़ातह ओहद हैं, जो फ़ातह खैबर हैं, जो खंदक हैं, तमाम फ़ातह में, हर चीज़ में, हर जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। हम आज उनका जिक्र कर रहे हैं कि जो रूठ जाते हैं तो रसूलुल्लाह मनाने आते हैं और उसी वक्त उनको अबू तराब का लक़ब देते हैं। हम आज उनकी बातें कर रहे हैं कि जिनकी ज़ौजा खातून जन्नत हैं, जो ज़ौज बतूल हैं। आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं कि जिनके साहबज़ादान जो हैं वो जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं कि जो पैदा भी अल्लाह के घर में होते हैं और जाते भी अल्लाह के घर से हैं। सुभान ये तमाम बातें हैं। अभी जो जिस तरह ज़हीर भाई बातें कर रहे थे कि 19 के दिन की जो सूरत हाल है, घर तक का बात की कि घर तक तशरीफ़ ला चुके हैं और एक अजीब मामला है। कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि औलिया कामलीन से मेरा ताल्लुक़ है कि शहनशाह विलायत को जब ज़रब लगी होगी तो रुआ काँप जाता है कि किस तरह शहनशाह विलायत, मुहाफ़िज़े नबूवत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत करते हैं। एक मरतबा कुछ लोग आते हैं और आका करीम से सैयदना अली हैदर कर्रार के बारे में कहते हैं, अली ने यूँ किया, अली ने ऐसा किया, अली ने वैसा किया। रहमतुल लिल आलमीन, जो किसी से नाराज़ नहीं होते, मगर जब ये ऐसी बात सुनते हैं अल्लाह के नबी अपना रुख मुबारक इस तरह फेर लेते हैं कि आपको ये बात पसंद नहीं आई, कोई अली के ख़िलाफ़ भी बोले। अल्लाह। फिर जब दोबारा कहते हैं इस तरह कि या रसूलल्लाह अली ने ऐसा किया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख मुबारक इस तरह फेर लेते हैं। और फिर कहते हैं या रसूलल्लाह अली ने ऐसा किया, तो आप जलाल में आते हैं, फरमाते हैं अली के हवाले से ना कहो। अली से मोहब्बत करना ईमान की निशानी, ये मौलाए कायनात। और जब वो घर के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं, वसीयतें की हैं, नसीहतें, वो अली हैदर कर्रार। कल भी एक जगह ये बात की गई कि जब आप क्या कुर्बान जाऊं कि जब शब हिजरत में कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर सैयदना अली हैदर कर्रार को लिटाते हैं
تو ایک جملہ ادا فرماتے ہیں کہ تمہاری کون مثل ہے علی، من مثل کا یا علی، تمہاری مثل کون ہے علی، تمہاری مثل کون ہے علی، تمہاری مثل کون ہے علی. کہ یا رسول اللہ ایسی کیوں آپ نے ایسا جملہ کیوں کہا کہ تمہاری مدد کے لیے جبرائیل اور میکائیل آتے ہیں. جن کی مدد کے لیے، جن کو دیکھنے کے لیے جبرائیل اور میکائیل آئیں، وہ علی کا کیا مقام ہوگا. اور سیدنا علی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ اس بات کی راوی ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ بیان فرماتے تھے ہر کوئی رسول اللہ کی طرف دیکھتا تھا، میرے بابا سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا علی حیدر کرار کی طرف دیکھتے تھے. کسی نے پوچھا کیا علی کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ چہرہ کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار موجود ہیں، آپ یہاں موجود ہیں. ایک شخص آیا دیہاتی اور کہنے لگا امیر المومنین خلیفۃ الرسول میرا جو ہے فیصلہ کیجئے. آپ نے ایسا اشارہ کیا علی موجود ہیں، علی فیصلہ کریں گے. تو اس دیہاتی نے جملہ کیا کہا، اب سنیے جملہ. اس دیہاتی نے گستاخی سے کہا یہ کیا فیصلہ کرے گا میرا. یہ جملہ تھا، روایت میں آتا ہے سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد گربان سے پکڑا اور کہنے لگے سن، یہ تیرا بھی مولا ہے، یہ میرا بھی مولا ہے، یہ تمام مسلمانوں کا مولا ہے. سبحان اللہ. امام ترمذی اس کو لے کے آئے من کنت مولا فہذا علی المولا. جب بدر کے دن للکار رہے ہیں اتبا ولی کون ہے کہ آج جو ہمیں جواب دے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مولا لات ہے، عزا ہے. تو یہاں سے آقا کریم فرماتے ہیں کون ہے کہ ان کو جواب دے گا. تو سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا نام سیدنا علی حیدر کرار ہے. لبیک یا رسول اللہ، میں ان کو جواب دوں گا. آقا کریم جب ان کو بھیجتے ہیں وہاں ان کو جواب دیتے ہیں کہ اللہ میرا مولا ہے. اور پھر غدیر خم کے موقع پر اب ایک اور جملہ آپ ہی جی تھوڑا سا بریک کے بعد جی بریک کے بعد یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو غدیر خم پر جو نبی علیہ السلام نے کہا وہ کس کے کہنے پر کہا. جزاک اللہ خیر. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد پاک ہے ہوشیار وہ ہے جو آخرت کی خاطر دنیا چھوڑ دے، اور نفع اٹھانے والا وہ ہے جو موجودہ زندگی اور منافع بیچ کر آئندہ کی زندگی اور فوائد حاصل کرے. سبحان اللہ. صفحے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پھر رحمانی بھائی، ظہیر بھائی اور شہنشاہ بھائی سے آپ ذکر سنیں گے. آج 19 رمضان، آئیے ذکر کو جاری رکھتے ہیں. صفحے کے بعد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.